So I welcome you all once again to this computer class. I hope you all attended the previous session as well. So let me share my screen first and we will discuss what we did yesterday. Rupali ma'am, please tell me, is my screen visible? Yes, ma'am. Okay, thank you. Okay, bete. So we started with the chapter 1. The name of the chapter is computer hardware and software. तो अगर किसी ने कल क्लास नहीं अटेंड की थी तो लेट मी टेल यू द नेम ऑफ द बुक इज आईटी फ्रेमवर्क फॉर पब्लिशर इज अवर्तन पब्लिशर. ये जो आपकी लास्ट ईयर वाली बुक है उसी को ही हम फॉलो कर रहे हैं. तो आपने वही वाली बुक जो है उसी को ही यूज करना है. So before starting the class, I request you all to bring your book along with you. Take your book and a pencil in your hand so that if we have to write somewhere on the book, then you can write. Yesterday some students were asking can they write with pen, so I had a word with other teacher. You cannot write with pen on the book, you have to write with the pencil. So use a pencil on the book. In the 5th standard you can use a pen while writing in the notebook, but जब आप बुक पे काम कर रहे हो तब आपको पेंसिल ही यूज करनी है. पेंसिल. ठीक है. So let's start with the today's session. So first of all, let us recap all the things what we did. तो आप पहले ऐसे करो, पहले मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताओ कि हमने कल क्या क्या किया था. कैन यू टाइप कि हमने कल कहाँ से स्टार्ट किया था एंड व्हाट वर द डिड्स वी discussed yesterday before I start with that. Input output hardware software input output processing good, very good. Kanika hardware. Kanika, yes. हार्डवेयर में हमने क्या क्या डिस्कस किया था. टाइप ऑफ कीबोर्ड्स. यस. 3 type of hardware input processing and output devices, and we started with output devices. Okay, let me start then. तो हमने स्टार्ट किया था विद कंप्यूटर हार्डवेयर. हमने हार्डवेयर की बात की थी. तो कैन एनीवन रेज हैंड टू टेल मी व्हाट इज हार्डवेयर. रूपाली मैम, जिसका भी हैंड रेज होगा प्लीज इसको अनम्यूट कर दीजिए फॉर द वाइल. मैम हार्डवेयर में मैम जिस चीज को मैम टच कर सके. हु इज दिस बेटे. सक्षम गुप्ता. आपकी आवाज बहुत कम आ रही है मुझे. मैम हार्डवेयर मैम वो होता है जिसको मैम हम टच कर सके. ओके, जिसे हम टच कर सकें. यस. एनीवन एल्स और कोई कुछ और ऐड करना चाहेगा इसमें. एक्सक्यूज मी मैम. हाँ जी बेटे. मैम हम इस चीज मैम हम हार्डवेयर मैम वो होता है जिसको हम टच कर सकते हैं और देख भी सकते हैं. रूपाली मैम, आपको आवाज आ रही है. ओके. So many student has raised hand. चलिए एनीवेज. तो हम बात कर रहे थे कंप्यूटर हार्डवेयर की. उसमें हमने बात की थी इनपुट डिवाइसेस की. वी टॉक्ड अबाउट कीबोर्ड, टाइप्स ऑफ कीबोर्ड, माउस, टाइप ऑफ माउस. वी टॉक्ड अबाउट लाइट पेन. लाइट पेन, अच्छा चलो मुझे एक फटाफट से बताओ कि लाइट पेन जो है वो कौन से
लाइट पेन जो है वो किस मॉनिटर पे वर्क करता है? यस, ब्रह्मजोत हैज रिटन CRT, वेरी गुड। टच स्क्रीन, दैट इज टच स्क्रीन। हम मैं बात कर रही हूँ कि वो कौन से टाइप ऑफ मॉनिटर पे बात करता है। हम आज बात करेंगे टाइप ऑफ मॉनिटर्स की, ठीक है। हमने ये डिस्कस किया था कि जो लाइट पेन है दैट ओनली वर्क्स विद CRT मॉनिटर, वेरी गुड, शाबाश, बड़े अच्छे बच्चे हैं मेरे, अच्छे से सुनते हैं बात, है ना? गुड, it's good that you are attentive in the class. It's really okay. Next one, we discussed about scanner and then a web camera and a digital camera. Good. So ये हमने पेज नंबर 10 पे आपकी एक एक्टिविटी थी उसको भी डिस्कस किया था। तो आप लोग मुझे आंसर्स दोगे चैट बॉक्स में। Which input device is used for playing computer games? Mouse. Good. Yesterday some student also give the answer joystick. That is also right. But हमने अभी mouse को read किया तो आप mouse लिख सकते हो. But if you write joystick, that is also correct. That is also a kind of input device. Name the type of mouse that has a movable control ball. बेटे hand raise नहीं करना. You can type in the chat box. So I guess Rupali ma'am has left the meeting due to some reason. If she is there, let me check. Rupali ma'am, I think she is not in the meeting. Anyways, yeah, here she is. Okay. Good. Third is, which device is used to have live video chat? Web camera. Very good. बेटे एक बार सभी अपने हैंड लोअर करो. लोअर योर हैंड्स डाउन प्लीज. सक्षम, दाक्षी, पहले अपनी हैंड्स एक बार लोअर कर दो. And Rupali ma'am, please you raise your hands because I'm finding it difficult to find you. Okay, Rupali ma'am, I have made you the host. You can take the charge now. Okay, bete. So next one is, into how many groups can computer hardware be divided? कितने groups में divide कर सकते हैं? 3 groups. Can you type the name as well? कौन से 3 groups हैं? Input, output and processing. So here are your answers. आप सभी इसको अपनी बुक में भी नोट कर लीजिए क्विकली. पेज नंबर 10 पे की एक्टिविटी है आपकी. First one था, which input device is used for playing computer game? Answer is mouse. Second is, name the type of mouse that has a movable control ball. Mechanical mouse, or you can also write ball mouse. With pen नहीं, मैंने अभी पहले ही explain किया है. You have to write with pencil. अगर आपने कर्ली पेन से लिख लिया था तो कोई बात नहीं, लेकिन जो फर्दर आप काम करोगे वो सभी आप पेंसिल से ही करोगे. Which device is used to have live video chat, web camera, and into how many groups computer hardware be divided? 3 groups. So let's move to further section. The next one is, what is this happening? Wait 1 second. So next we have to talk about
दैट वाज लेफ्ट विद प्रोसेसिंग डिवाइस। हमने कल इनपुट की बात की थी, आज हम बात करेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस की। सो सीपीयू इज नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस, इट इज द ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, इट प्रोसेसेस द गिवन इंफॉर्मेशन। तो जो भी हमारा कंप्यूटर में काम होता है वो, जैसे हमारी बॉडी में सारा कुछ कौन मैनेज करता है, हु कंट्रोल्स ऑल द पार्ट्स ऑफ द बॉडी, दैट इज आवर ब्रेन। ऐसे ही कंप्यूटर का ब्रेन कौन है, सीपीयू, राइट। तो जो भी हम काम करते हैं, जो भी कंप्यूटर की ओवरऑल फंक्शनैलिटी है, जो भी काम करना है, जिसको मैसेज भेजना है कि अब तुमने ये काम करना है, तुमने इनपुट लेनी है, तुमने प्रोसेस करना है, तुमने कैलकुलेशंस करनी है, तुमने आउटपुट देनी है, कंपैरिजन करना है, सब काम कौन करता है, द प्रोसेसिंग डिवाइस, दैट इज द CPU, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट ऑफ द कंप्यूटर। तो अब बात आ गई कि हम सीपीयू को कितने पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। इफ यू कैन सी दिस, तो ये सेंटर में जो है ये हमारा सीपीयू है, इसके अंदर मैंने इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। ऊपर है कंट्रोल यूनिट एंड अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट, 2 पार्ट ऊपर है, और ये दोनों पार्ट किसके साथ अंदर ही कम्युनिकेट करते हैं, मेमोरी यूनिट के साथ। ये सारे टोटल हमारे तीनों पार्ट आ गए ना हमारे कंप्यूटर के। पहला पार्ट हो गया इनपुट डिवाइस, ये किसको भेजेगा, सीपीयू को सारा डेटा भेजेगा इनपुट लेके, सीपीयू इसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के लिए उसने सीपीयू को हमने 3 पार्ट्स में डिवाइड किया है। पहला पार्ट है कंट्रोल यूनिट, ऑल्सो कॉल्ड सीयू, सेकेंड है एएलयू, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट, एंड थर्ड इज एमयू, मेमोरी यूनिट। और जो भी डेटा प्रोसेस होके आएगा उसको वापस आंसर रिजल्ट किसको शो किया जाएगा, टू द आउटपुट डिवाइस, राइट। तो नेक्स्ट है मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट क्या करता है, इट स्टोर्स डेटा एंड इंस्ट्रक्शन विच कैन बी रिकॉल्ड एनी टाइम। तो जो भी हम चीज सेव करते हैं वो कहाँ पे जाके सेव होती है, मेमोरी यूनिट में। सिर्फ स्टोरेज के लिए ही यूज नहीं करते हम मेमोरी को, हमारे जो भी रनिंग एप्लीकेशंस होती है, जैसे आप अपने कंप्यूटर में गेम खेल रहे हो, यूट्यूब चला रहे हो, तो वो सारा कहाँ पे काम होता है, मेमोरी के अंदर। तो इसलिए हम फर्दर इसको नेक्स्ट चैप्टर में रीड करेंगे कि मेमोरी 2 तरह की होती है, प्राइमरी मेमोरी एंड सेकेंडरी मेमोरी। यहाँ पे मैं इसकी डिटेल नहीं दे रही, मैं सिर्फ आपको दिखा रही हूँ यहाँ पे इस पिक्चर में कि इतने तरह की मेमोरी होती है। ये सारे तरह की मेमोरी, टाइप ऑफ मेमोरी वी विल स्टडी इन डिटेल इन द नेक्स्ट चैप्टर। नेक्स्ट हमारा जो यूनिट है वो है कंट्रोल यूनिट। तो जो भी सारा काम होता है उसको कौन मैनेज करता है, सारी फंक्शनैलिटी को हमारा कंट्रोल यूनिट मैनेज करता है। उसका काम है सभी को इंस्ट्रक्शंस भेजना, उनसे काम करवाना कि तुम्हारा ये काम है, तुमने ये करना है, तुमने वो करना है। ये सारा काम कौन करवाता है, कंट्रोल यूनिट। इफ यू कैन सी इन द डायग्राम, तो कंट्रोल यूनिट अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट को कमांड भेजता है, प्राइमरी मेमोरी को इंस्ट्रक्शंस, कमांड, डेटा, रिजल्ट, सब कुछ। ये किसका काम है, सारी कमांड्स भेजना कंट्रोल यूनिट का काम है, दैट इज सीयू। नेक्स्ट इज अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो हम जब कंप्यूटर को कहते हैं कि चलो सॉल्व करके बताओ 2 + 2, वो 2 और 2 को कैसे प्लस करेगा, वो उसकी किस सेक्शन, कौन सा सेक्शन होगा, वो कौन सा पार्ट होगा जो इस कैलकुलेशन को सॉल्व करेगा, दैट इज द अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। वो अरिथमेटिक कैलकुलेशंस भी करेगा, जैसे कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, और वो लॉजिकल ऑपरेशंस भी परफॉर्म करेगा। कि जैसे लॉजिकल मतलब फाइंड करना कि अगर आपके पास 10 नंबर्स हैं तो उसमें से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, पहले नंबर जो है अल्फाबेटिकल, उसको सॉरी असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना। दीज ऑल आर द लॉजिकल ऑपरेशंस, और ये सारे काम कौन करता है, अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। तो आप जल्दी से मुझे बताओ, इन हाउ मेनी पार्ट्स वी कैन डिवाइड सीपीयू, चैट बॉक्स में लिखो फटाफट से। 3 parts. 3 parts, good, 3 parts. Can anyone type the name? शॉर्ट फॉर्म में लिख दो, मैंने अभी आपको बताई ना शॉर्ट फॉर्म। हाँ, CUMUALU, वेरी गुड हरमनजोत, क्लैप फॉर हिम। हरमनजोत, जसमीत, इंस, अर्शदीप, बड़े अच्छे बच्चे हैं सारे, अच्छे से सुन रहे हैं मैम को, है ना, गुड, वेरी गुड। MI, चलो ये मेरे ख्याल से दीक्षा से गलती से लिखो गया है ना। सो CU कंट्रोल यूनिट, MU मेमोरी यूनिट, एंड ALU अरिथमेटिक एंड लॉजिक यूनिट। So there are the 3 parts in which we can divide the CPU.
So tell me quickly, which part of the CPU control all the other parts of the computer? कौन सा पार्ट है इन तीनों में से जो दूसरे सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है, जिसका काम सिर्फ कमांड्स भेजना है? Can you tell me? Yes, very good, Parneet. Rod, CU, कंट्रोल यूनिट, उसका नाम ही कंट्रोल यूनिट है. इट मीन्स वो सारे पार्ट्स को कंट्रोल करता है. गुड. सिमरन ने लिखा है MU. नहीं बेटे, MU इज मेमोरी यूनिट. वो डेटा को स्टोर करने के लिए, जो भी डेटा हमारे पास आता है उसको, जैसे आप पिक्चर्स वीडियो सेव करते हो, वो मेमोरी यूनिट का काम है, स्टोरेज का काम है. लेकिन सारे पार्ट्स को कंट्रोल करना किसका काम है? कंट्रोल यूनिट का काम है. गुड, अच्छे बच्चे हैं. नेक्स्ट, कम टू आउटपुट डिवाइसेस. आउटपुट डिवाइसेस, अब इनपुट डिवाइसेस क्या थे? जो इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जो कंप्यूटर के अंदर इन्फॉर्मेशन भेजते हैं, सीपीयू को इन्फॉर्मेशन भेजते हैं. फिर हमने पढ़ लिया सीपीयू सारा डेटा प्रोसेस करता है. प्रोसेस होने के बाद अब आपको फाइनल आउटपुट भी तो देखनी है. तो जो आउटपुट है वो आपको कौन शो करेगा? Output devices. Output devices show information or data entered into a computer and also display the result after processing. जैसे आप 2+2 लिख रहे हो तो नजर कहाँ पे आ रहा है आपको? मॉनिटर पे. दैट इज ऑन द आउटपुट डिवाइस. और फाइनल जब आप एंटर प्रेस करते हो, एंटर प्रेस करने पे 2 और 2 को कैलकुलेट किसने किया? 2+2 किसने किया? सीपीयू ने, राइट. और वापस से उसका आंसर हमें किसने शो कराया? मॉनिटर में. अगर मॉनिटर नहीं होगा, सोचो तो आप कुछ काम कर सकते हो, हमें तो कुछ नजर ही नहीं आएगा कि हम करें क्या, राइट. सो इट इज अ वेरी एसेंशियल पार्ट एंड इट इज अ आउटपुट डिवाइस. चलो, एक आउटपुट डिवाइस तो मैंने आपको बता दिया. अब एक आउटपुट डिवाइस जल्दी से आप लोग अपने चैट बॉक्स में बताओ, एक्सेप्ट मॉनिटर. अब मॉनिटर मैंने बता दिया है. अब मॉनिटर के अलावा कोई और आउटपुट डिवाइस इफ यू नो तो आप मुझे बताओ जल्दी से. मनराज ने क्या लिखा? नो. वाई मनराज? आपको कोई और? माउस. बेटे माउस हमने कल ही रीड किया. माउस इज एन इनपुट डिवाइस. यस. प्रिंटर, स्पीकर, नॉट कीबोर्ड. नो, कीबोर्ड नहीं है. यस. प्रिंटर, प्लॉटर, प्रिंटर, प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर, प्रोजेक्टर. गुड. ये जो आपकी बुक में है. बुक के अलावा भी कोई और आप बता सकते हो? स्पीकर बताए कई बच्चों ने. भूवी ने स्पीकर बताया. वेरी गुड भूवी, शाबाश. सीपीयू, सुहाना, सीपीयू इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, इट इज अ प्रोसेसिंग डिवाइस. वो प्रोसेस करता है. अभी हमने रीड किया बेटे. स्कैनर नहीं बेटे, स्कैनर तो इनपुट लेके हार्ड कॉपी, जो हम पेज होते हैं जैसे हार्ड कॉपी है, उसको स्कैन करके सारा डेटा कंप्यूटर के अंदर सेव करता है. कीबोर्ड भी नहीं है, कीबोर्ड इनपुट डिवाइस है. सो ये है आपके आउटपुट डिवाइसेस. डिफरेंट मैंने थोड़े से कुछ यहाँ पे आपको शो किए हैं. इसके अलावा और भी होते हैं हमारे पास. स्पीकर है, मॉनिटर है, हार्ड हेडफोन्स है, प्रोजेक्टर है, प्रिंटर है, ठीक है, साउंड कार्ड्स होते हैं हमारे. ये सारे आउटपुट डिवाइस हैं जो आपको साउंड में हेल्प करते हैं. सो लेट्स स्टार्ट विद मॉनिटर. मॉनिटर इज द मोस्ट एसेंशियल आउटपुट डिवाइस. जो भी हम काम करते हैं वो हमें कहाँ पे नजर आता है? मॉनिटर के ऊपर. और सारी आउटपुट स्क्रीन के ऊपर कौन डिस्प्ले करता है? हमारा मॉनिटर. तो आउटपुट जो हमारी मॉनिटर पे नजर आती है उसको हम और क्या कहते हैं? सॉफ्ट कॉपी. ये क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है वाइवा में, उसमें 1 मार्क में भी हो सकता है, या फिर मैं ऐसे ही क्लास में भी आपसे कभी कभी पूछ सकती हूँ, या आपसे कोई और भी पूछ सकता है. तो आपको पता होना चाहिए कि सॉफ्ट कॉपी क्या होती है और हार्ड कॉपी क्या होती है. जो पेज जिसको आप टच कर सकते हो, जैसे हमने हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की बात की है. हार्डवेयर क्या है? जिन पार्ट्स को हम टच कर सकते हैं, कंप्यूटर के पार्ट्स को जिनको हम टच कर सकते हैं. ऐसे ही हार्ड कॉपी क्या होती है? जैसे आपकी नोटबुक है, आपकी बुक है, उसके पेजेस को आप टच कर सकते हो ना, तो वो सभी क्या है? हमारे हार्ड कॉपीज. लेकिन जो भी पेज कंप्यूटर के अंदर है, ठीक है, जो डेटा आप, जैसे आपको अब मैं ये प्रेजेंटेशन दिखा रही हूँ, आपको ये नजर आ रही है, बट यू कैन नॉट टच इट. आप इसको टच नहीं कर सकते. आप सिर्फ अपने फोन की स्क्रीन को टच कर सकते हो, या फिर अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हो तो आप मॉनिटर की स्क्रीन को टच कर सकते हो. आप प्रेजेंटेशन को टच नहीं कर सकते. सो दिस इज जो कंप्यूटर के अंदर मॉनिटर के ऊपर आपको नजर आ रहा है, दैट इज योर सॉफ्ट कॉपी. दो चीजें होगी आपके पास, एक तो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर हो गया, एक सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी हो गई. ठीक है, तो आप मुझे बता सकते हो हाउ मेनी टाइप्स ऑफ मॉनिटर्स आर देयर? वैसे तो आपकी बुक में दिए हैं, बट इफ यू आर गुड एंड यू डोंट चीट,
तो आप मुझे बता सकते हो कितने टाइप हैं? थ्री लिख रहे हैं सभी। आई नो, अपनी बुक से देखा है ना। चलो एनीवेज, अगर आपको पहले से पता है देन इट्स रियली वेरी गुड। तो हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ मॉनिटर, सीआरटी मॉनिटर्स, एलसीडी मॉनिटर्स एंड एलईडी मॉनिटर। इनके बारे में हम डिटेल में पढ़ेंगे। ये तीनों टाइप ऑफ मॉनिटर आपने देखे होंगे। सीआरटी आई एम डाउटफुल कि अगर आपने ये देखे हैं या नहीं। आई गेस हमारी कंप्यूटर लैब में, हाँ हमारी कंप्यूटर लैब में सीआरटी मॉनिटर है। वी हैव 4 सीआरटी मॉनिटर्स। तो आपने पक्का हो गया, आपने देखे हैं ये भी, ठीक है। तो फर्स्ट है सीआरटी मॉनिटर। तो पहले हम बात करेंगे सीआरटी की फुल फॉर्म क्या है। दैट इज कैथोड रे ट्यूब। तो एक ट्यूब है जिसके अंदर कैथोड मटेरियल है। अभी आप बहुत छोटे हो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए, अभी सिर्फ आप ये समझो कि इसके अंदर जो इसका फुल नेम है दैट इज कैथोड रे ट्यूब। ये और ये इसी के ऊपर ही वर्क करता है। इट इज ओल्डेस्ट अमंग द 3 टाइप्स। जो अभी हम आगे 3 टाइप्स पढ़ेंगे, बाकी 2 टाइप्स उन दोनों के कंपैरेटिवली ये ओल्डेस्ट है। और आजकल हम इसको कम ही यूज करते हैं। क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करता है। ऑल्दो इट इज लेस एक्सपेंसिव, अगर आप इसको बाय करने जाओ तो ये आपको सस्ता ही मिल जाएगा, लेकिन ये इलेक्ट्रिसिटी बहुत ज्यादा कंज्यूम करता है और स्पेस भी बहुत ज्यादा लेता है। इसलिए आजकल हम इसको कम ही यूज करते हैं। लेकिन फिर भी इट वाज ऑफ गुड क्वालिटी। ये गुड शार्प इमेजेस जो था वो प्रोड्यूस करता है ये मॉनिटर भी। द क्वालिटी ऑफ प्रोड्यूसिंग इमेजेस बाय दिस मॉनिटर इज क्वाइट गुड। नेक्स्ट इज एलसीडी। अब ये तो आपने देखे ही होंगे, आपके घरों में एलसीडी टीवी भी होंगे, तो दोज आर सेम। एलसीडी मॉनिटर्स भी सेम है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ एलसीडी इज लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। इट इज वेरी लाइट इन वेट। इसको इनको कैरी करना, एक जगह से दूसरी जगह पे शिफ्ट करना बहुत आसान है क्योंकि बहुत हल्के होते हैं। और सीआरटी मॉनिटर के कंपैरेटिवली ये बहुत ही लेस इलेक्ट्रिसिटी, लेस पावर जो है वो कंज्यूम करते हैं। और ये स्पेस भी कम लेते हैं, दे ऑक्यूपाई लेस स्पेस। और ये भी शार्प इमेजेस जो है वो प्रोड्यूस करते हैं। एंड द थर्ड वन इज एलईडी मॉनिटर। तो आजकल हमारे पास एलईडी लाइट्स भी हैं, एलईडी टेलीविजन है, एलईडी मॉनिटर्स हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? लाइट emitting diode. They are also light in weight, they consume less power, and they are latest among the 3 types of computers. ठीक है, जो भी हमने 3 मॉनिटर पढ़े, सीआरटी, एलसीडी एंड एलईडी, उन तीनों में से लेटेस्ट कौन सा है? एलईडी मॉनिटर। आजकल डिमांड में है क्योंकि इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है, हाई डेफिनेशन पिक्चर्स, तो अल्ट्रा हाई डेफिनेशन पिक्चर आपने देखा होगा, टीवी पे ऐड आती है कि ये अल्ट्रा हाई डेफिनेशन पिक्चर्स आपको डिस्प्ले देता है। दैट्स व्हाई दे आर हाईली इन डिमांड दीज डेज। तो अब एक छोटा सा आपके पास क्विज आ गया है। अब आपने जल्दी से बताना है कि इन कंप्यूटर टर्मिनोलॉजी सीआरटी स्टैंड्स फॉर, दैट इज व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ सीआरटी। तो ऑप्शन 1 ऑप्शन 2 लिखेंगे जल्दी से, 1 और 2, कैथोड रे ट्यूब और कंप्यूटर रिमोट टर्मिनल। 1 वेरी गुड, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। अब भूलना नहीं है इसको, दैट इज कैथोड रे ट्यूब। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मॉनिटर इज लाइटर इन वेट? कौन सा मॉनिटर लाइट है जिसको कैरी करना आसान है? सीआरटी को हम इजीली कैरी कर सकते हैं या एलसीडी को? टू सभी ने लिखा है 2। वेरी गुड, एन्स, भूवी, अर्शदीप, गुड, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन यू हैव, विच मॉनिटर इज मोर एक्सपेंसिव कंपैरेटिवली? कंपैरेटिवली मतलब अगर हम इन दोनों को कंपेयर करें तो दोनों में से एक्सपेंसिव कौन सा होगा? सीआरटी या फिर ऑप्शन 2 एलसीडी? LCD is quite more expensive than CRT monitor. Very good. And next one is, which monitor consume less space? कौन सा less space लेता है, CRT या LED? LED. Good. सुहाना, एन्स, अर्शदीप, राजवीर, जानवी, परमीत, LED. Good. Very good. I think you should all clap for yourself. अपने पास ही अपने घर में अपने लिए एक बार क्लैप कर दो कि आप बड़े अटेंटिवली सुन रहे हो क्लास में। What is the full form of LCD? अभी बेटे मैंने आपसे साथ डिस्कस किया, LCD की फुल फॉर्म कौन लिखेगा? LCD की फुल फॉर्म चैट बॉक्स में, if anyone wants to write.
एलईडी पूछा है या एलसीडी पूछा है बच्चे ने? किसने पूछा था ये क्वेश्चन? गिरीशा ने पूछा है एलसीडी की फुल फॉर्म। वंशिका नोट बेटे, नोट एलईडी, एलसीडी। नो नो नो, नॉट लाइट। लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, वेरी गुड जशनदीप, अनहद, गुड, वेरी गुड, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। तो आ गया ये। अब एलईडी की फुल फॉर्म आ गई। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ एलईडी? लाइट इमिटिंग डिकोड या लाइट इमिटिंग डियोइड? कौन सा ऑप्शन है, 1 और 2? यू कैन टाइप द ऑप्शन नंबर 1 और 2। 2, गुड, लाइट इमिटिंग डियोइड। अब आपके माइंड में आ रहा होगा ये लाइट इमिटिंग डियोइड है क्या? ये तो मैंने आपकी नॉलेज के लिए ये छोटा सा बताया कि ये लाइट इमिटिंग ऐसे छोटे से डियोइड्स होते हैं। एक डिवाइस होता है जो लाइट प्रोड्यूस करता है किसी भी इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट पे। तो हमारे बल्ब्स में, ट्यूबलाइट्स में, हमारे उसमें ये लाइट इमिटिंग डियोइड होता है दैट प्रोवाइड्स, दैट इमिट्स लाइट, ठीक है, जो लाइट को प्रोड्यूस करता है। ओके, सो नेक्स्ट आ जाओ जी, प्रिंटर। प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है जो प्रिंट करता है इंफॉर्मेशन ऑन अ शीट ऑफ पेपर। अब प्रिंटर जो हमारे पास आउटपुट देगा दैट इज आवर हार्ड कॉपी। तो हमने पहले भी बात की सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी की। तो जो भी आउटपुट प्रिंटर प्रोड्यूस करेगा दैट इज आवर हार्ड कॉपी। तो हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रिंटर हैं। एक है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, दूसरा है इंकजेट प्रिंटर और थर्ड है लेजर प्रिंटर। सो वी विल डिस्कस दीज इन डिटेल। तो पहला आ गया डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो ये प्रिंटर कैसे प्रिंट करता है? स्ट्राइक करता है। जैसे हम इसमें पेपर डालते हैं तो इसके अंदर एक छोटी सी हैमर लगी होती है, एक इंक का रिबन होता है, तो वो हैमर इंक के रिबन के ऊपर लगता है और ये डॉट्स के फॉर्म में स्ट्राइक कर करके जो है वो जो ग्राफिक्स है या टेक्स्ट है उनको प्रोड्यूस करता है। इट प्रोड्यूस ओनली ब्लैक एंड व्हाइट इमेजेस। ये आपको याद रखना है, ये पुराने प्रिंटर है और ये सिर्फ ब्लैक एंड व्हाइट ही इमेजेस प्रोड्यूस करते हैं। इनको हम इम्पैक्ट मैट्रिक्स प्रिंटर भी कहते हैं। डॉट मैट्रिक्स क्यों है? क्योंकि ये मैट्रिक्स की फॉर्म में, मैट्रिक्स मतलब टेबल फॉर्म में, आप टेबल फॉर्म समझ सकते हो, ठीक है, रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में होती है सारी इसकी प्रिंटिंग। सो प्रिंट कैसे करता है? बाय स्ट्राइकिंग पिंस अगेंस्ट एन इंक रिबन। एक इंक रिबन होता है, उसके ऊपर पिंस को स्ट्राइक कर करके हमारे जैसे ए बनाना है तो पिंस को स्ट्राइक कर करके ए बनेगा। बट वो सारा प्रोसेस इतना फास्ट होता है कि हमें लगता है कि वो ए क्विकली जो है वो बन गया, लेकिन वो छोटी छोटी पिंस को स्ट्राइक करके बनता है। नेक्स्ट इज इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर कैसे प्रिंट करते हैं टेक्स्ट एंड ग्राफिक्स? बाय स्प्रेइंग स्मॉल ड्रॉप्स ऑफ इंक। तो उनके अंदर एक जैसे समझ लो स्प्रे बॉटल है तो वो स्प्रे करते हैं, वो छोटी छोटी ड्रॉप्स को स्प्रे करते हैं और वो टेक्स्ट या इमेजेस को बनाते हैं। दे प्रिंट फास्टर देन डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से वो जल्दी प्रिंट करते हैं और ये हमें कलर्ड कॉपी भी देते हैं और इनकी जो पिक्चर क्वालिटी है, इमेज क्वालिटी है, प्रिंटिंग क्वालिटी है वो बेटर है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर से। थर्ड वन इज लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर जो है इनके अंदर लेजर लाइट होती है, बीम ऑफ लाइट है, तो लेजर बीम की हेल्प से ही ये प्रिंट करते हैं। दे आर द लेटेस्ट टाइप ऑफ प्रिंटर। ये बहुत क्विकली फास्ट प्रिंट करते हैं, विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड्स ये हमारा एक पूरा पेज जो है वो प्रिंट कर देते हैं। ये ब्लैक एंड व्हाइट और कलर्ड कॉपी भी प्रिंट करते हैं। डॉट मैट्रिक्स और इंकजेट प्रिंटर के कंपैरेटिवली ये थोड़ी सी एक्सपेंसिव है, ठीक है। तो एक आपके पास यहाँ पे हेल्प बॉक्स में दिया हुआ था, इन्फो बॉक्स में है पेज नंबर 12 पे। सो उसमें क्वेश्चन मैंने आपको पूछा है व्हेन वाज द फर्स्ट लेजर प्रिंटर इन्वेंटेड। ये आपके पास उसमें दिया हुआ है पेज नंबर 12 पे इन्फो बॉक्स में। द फर्स्ट लेजर प्रिंटर वाज इन्वेंटेड इन 1969 बाय गैरी स्टार्कवेदर एट जेरोक्स, ठीक है। तो कब इन्वेंट हुआ था फर्स्ट लेजर प्रिंटर? इन 1969। नेक्स्ट इन आउटपुट डिवाइस वी हैव इज अ प्लॉटर। अब प्लॉटर आप कैसे समझ सकते हो? सपोज हमें एक बहुत पूरी वॉल के ऊपर एक हमने पेज या कुछ भी पिक्चर जो है वो प्रिंट करके हमने पूरी वॉल के ऊपर लगानी है, तो हम प्रिंटर से तो नहीं निकाल सकते, वहां पे हमारी हेल्प करेगा प्लॉटर। प्लॉटर प्रिंट्स वेक्टर ग्राफिक, इट मींस इट कैन प्रिंट ऑन अ वेरी लार्ज शीट while maintaining high resolution। while maintaining high resolution मतलब पिक्चर ऐसी आपको फटी फटी सी नहीं लगेगी कि बड़ी ब्लर सी है, उसकी क्वालिटी अच्छी नहीं है,
पूरी अच्छी क्वालिटी की प्रॉपर इमेज आपकी प्रिंट होकर आएगी एक बहुत ही लार्ज शीट पे। किसकी हेल्प से कर सकते हैं? प्लॉटर की हेल्प से। दे आर यूज्ड टू क्रिएट हाई क्वालिटी डिजाइन, ग्राफिक, चार्ट्स, डायग्राम्स एंड सो ऑन। ठीक है, हम कुछ भी, कोई भी ग्राफिक्स, कोई भी चार्ट्स, कुछ भी ड्रॉ कर सकते हैं, बट कहाँ पे ड्रॉ करते हैं? बड़ी इमेजेस पे, बड़े शीट्स पे। तो इनको यूज कौन करता है? बिल्डिंग्स में डिजाइन करने के लिए, अगर बिल्डिंग्स डिजाइन करनी है, शिप्स डिजाइन करनी है, मशीनरी डिजाइन करनी है, पोस्टर्स बनाने हैं, तो वहां पे हमारे प्लॉटर्स यूज होते हैं। दे आर हाईली एक्सपेंसिव एज कम्पेयर टू प्रिंटर। तो आप खुद सोच लो कि वो इतनी बड़ी शीट्स को प्रिंट करते हैं, तो उसके लिए उनकी जो हार्डवेयर कॉस्ट है वो भी प्रिंटर की कंपैरेटिवली ज्यादा है। So these are the type of plotters we have. First is flat bed. Flat bed आप देख रहे हो कि वो बिल्कुल फ्लैट है, ठीक है, वो ऊपर जो शीट है उसके ऊपर डाल दी जाती है और वो ऊपर ही उसको प्रिंट करता है। सेकंड इज ड्रम प्रिंटर। तो ड्रम की फॉर्म में वो शीट अंदर चली जाती है और अंदर से प्रिंट होकर वापस बाहर आती है, ठीक है। सो एक और क्वेश्चन है आपके इन्फो बॉक्स में दिया हुआ, व्हेन वाज द फर्स्ट प्लॉटर इन्वेंटेड? तो पहला प्रिंटर तो हमने पढ़ लिया 1969 में है। पहला प्लॉटर कब इन्वेंट हुआ था? 1953 में, यस। Remington Rand invented the first plotter in year 1953। ये दो क्वेश्चन हो गए कि पहला लेजर प्रिंटर कब इन्वेंट हुआ था और पहला प्लॉटर कब इन्वेंट हुआ था। पहला लेजर प्रिंटर इन्वेंट हुआ था 1969 में और फर्स्ट प्लॉटर इन्वेंट हुआ था इन 1953, ठीक है। Last, your hardware, output device is projector. A projector display the output on a huge screen, whiteboard or a wall. I guess projector आपने देखा हुआ है जब आप नीचे एक्टिविटी हॉल में जाते हो, तो अगर आप वहां पे कोई भी चीज आपको दिखाई जाती है, that is shown with the help of a projector. तो वो प्रोजेक्ट करता है किसी भी इमेज को, पिक्चर को, वीडियो को on a wall or on a whiteboard. So it reflects a magnified image. Magnified मतलब छोटी चीज को वो बड़ा करके दिखाता है। And used in classroom teaching. टीचर्स भी इसको यूज करते हैं। अब अगर आप स्कूल में आओगे तो आप देखोगे हमारे पास यहाँ पे भी स्मार्ट क्लास बन गई है, वहां पे प्रोजेक्टर्स लगे हुए हैं, आपको मैम उसकी हेल्प से पढ़ाएंगे, ठीक है। जो हम टीचर्स प्रेजेंटेशन देने के लिए या फिर कुछ और ऑफिस में लोग प्रेजेंटेशन देने के लिए, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने के लिए यूज करते हैं। और एक जगह और भी आपको पता होना चाहिए कि कहाँ पे प्रोजेक्टर होते हैं, मूवी थिएटर में। जो थिएटर होता है वहां पे स्क्रीन नहीं होती बड़ी, वो सिर्फ एक खाली स्क्रीन होती है और जहां पे आप बैठे होते हो वहां से बैक साइड से प्रोजेक्टर की हेल्प से आपकी जो मूवी है वो वहां पे प्रोजेक्ट की जाती है, ठीक है, थिएटर्स में। वेरी गुड। सो चलो जल्दी से बताओ, विच अमंग ऑफ दीज इज द मोस्ट एक्सपेंसिव? इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स, लेजर या फिर प्लॉटर? फटाफट टाइप द ऑप्शन नंबर 1, 2, 3 और 4। 4, जशनदीप, वेरी गुड। 4 प्लॉटर। इन सब में से सबसे एक्सपेंसिव कौन है? प्लॉटर। वेरी गुड, शाबाश। विच प्रिंटर प्रिंट्स एट हाई स्पीड? इंकजेट प्रिंटर या फिर लेजर प्रिंटर? दोनों में से कौन जल्दी स्पीड पे करता है? 2, लेजर प्रिंटर। Good, very good. Laser printer are high speed printer. Next, which printer prints by striking on paper? हमने पढ़ा ना कि वो पेपर पे स्ट्राइक करता है। मैंने आपको ये भी बताया, उसके अंदर एक छोटी सी हैमर, हथौड़ी लगी होती है जो जोर जोर से स्ट्राइक करके जो है वो इमेजेस को प्रिंट करती है, ड्रॉ करती है। तो इंकजेट होता है या डॉट मैट्रिक्स? डॉट मैट्रिक्स 1। इसमें कंफ्यूजन है ना सभी को। बेटे इंकजेट प्रिंटर मैंने आपको बताया था कि वो स्प्रे करता है, वो डॉट्स जैसे उसके अंदर, जैसे आप सोच लो कि इसके अंदर स्प्रे लगी हुई है और वो स्प्रे कर करके डॉट्स बनाता है और उसके थ्रू वो अल्फाबेट्स और लेटर्स बनाता है। लेकिन जो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर है वो स्ट्राइक करके हथौड़े से मारता है, जैसे स्ट्राइक करना, मारना, ठीक है, वो मार मार के हथौड़े से फिर वो जो अल्फाबेट्स और लेटर्स जो है वो बनाता है, ठीक है। So option number 2 is the correct option. Which printer prints both black and white and colored copy? Dot matrix या laser? Yes, laser printer. Very good. Laser printer. Dot matrix हमने पढ़ा, वो पुराने थोड़े प्रिंटर हैं और वो सिर्फ black and white copies देते हैं। So here is a quick activity B on your page number 17. If you can open your book
at page number 17. Let me read it for you. Bipin went to the computer lab in his school. वो अपने स्कूल की कंप्यूटर लैब में जाता है. बिपिन नाम का एक बॉय है. He made a list of some of the computer devices he saw. वो कुछ डिवाइसेस जो उसने लैब में देखे उनकी लिस्ट बनाता है. Look at Bipin's list. बिपिन की लिस्ट को देखो and see whether he has got the name of the devices right. और देखो उसने सही नेम लिखे हैं डिवाइसेस के. अगर आपको लगता है कि उसने गलत लिखे हैं तो नीचे लाइन जो दी हुई है उसके ऊपर सही नाम लिखेंगे आप. So quickly do it in your book. After 2 minutes, I will share the answers with you. और अगर आज मुझे लगता है the class will get over, अगर क्लास आज ओवर हो गई, then we will do it tomorrow. ठीक है. अभी आप इसको सॉल्व करो. अगर तो हमें हमारा ये आज हमारा डिस्कस हो गया, ठीक है, नहीं तो अदरवाइज वी विल डिस्कस इट टुमारो. फर्स्ट उसने लिखा है प्रोजेक्टर. आपको पिक्चर देखनी है. क्या ये प्रोजेक्टर है? सेकंड, इज इट अ प्रिंटर? थर्ड, इज इट अ बारकोड रीडर और इट इज अ स्कैनर? चारों ऑप्शंस में से अगर आपको लगता है कोई ऑप्शन सही उसने लिस्ट नहीं किया है तो आपने उसको सही करके उसका सही नाम जो है वो इसके नीचे लिख देना है. ठीक है. So I hope you are able to do it right now after discussing. हमने सारे इनपुट और आउटपुट डिवाइस डिस्कस कर लिए हैं और मुझे लगता है कि अब आप ये एक्टिविटी अच्छे से परफॉर्म कर सकते हो. तो हम इसको हमारी नेक्स्ट